ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੂਦ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਦ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਦ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸੂਦ, ਮਨੀਸ਼ ਸੂਦ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸੂਦ, ਅਕਸ਼ਤ ਸੂਦ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸੂਦ, ਨੀਲਰਾਜ ਸੂਦ, ਰੀਆ ਸੂਦ, ਨरुण सूद, सानिया सूद ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦ ਭਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਸੂਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅੰਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1933 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ 1960 ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਰੋਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਜੰਮੂ, ਗਗਰੇਟ ਵਿਖੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੂਦ, ਮੋਨਿਕਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ जी ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਕਸ਼ਸ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਨੀਲਰਾਜ ਸੂਦ, ਰੀਆ ਸੂਦ, नरुण सूद ਅਤੇ ਸਾਨਿਆ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ है। और इसमें क्या लिखा गया है, जिसको सुनने से गरुड़ जी भी कांपने लग गए थे। और शास्त्र की जो विधियां नियम हम बार बार पंडितों से भी पूछने जाते हैं, उसका भी सारा विवरण इस ग्रंथ में दिया गया है। इसको पढ़ने और सुनने के बाद शास्त्र कहता है कि जो इसको सुनता है और जो इसको पढ़ता है वो दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं, और जिसके लिए ये रखा गया है वो भी स्वर्ग को जाता है। तो श्री वेद व्यास जी जो इस पुराण के रचयिता और सूत जी ने आगे इस पुराण को हमारे जो 88,000 ऋषि हैं उनको सुनाया है। हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, 18 पुराणों में एक गरुड़ पुराण है। और सभी पुराण जो हैं सबसे पहले वो भगवान के मुख से निकले हैं। भगवान ने किसी ना किसी जीव को ये पुराण जो हैं वो सुनाए हैं। उसके बाद वेद व्यास जी ने इनकी रचना की, इनको लिखा, और फिर सूत जी ने इनको हमारे जो 88,000 ऋषि जो हैं उनको सुनाया है। इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया क्योंकि ये भगवान ने गरुड़ जी को सुनाया है। ये पुराण बहुत बड़ा पुराण है, बहुत इसके अध्याय हैं, लेकिन उसमें से ये 16वां अध्याय जो इस जीव के कल्याण के लिए है, इसको प्रेत कल्प का नाम दिया गया है। इसे हम घर के किसी की मृत्यु हो जाए उन दिनों में सुनते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिया उसे श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय का नाम दिया गया। उसी प्रकार यह पुराण गरुड़ पुराण में 16वां अध्याय जो है इसको प्रेत कल्प का नाम दिया गया, कि जो प्रेत कल्प हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के लिए
कि जब भी हम इस जीवन में आए हैं, इस आत्मा का किस प्रकार कल्याण होगा। हमारी मंजिल, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये पुराण लिखा गया है। और ये पुराण कैसा है कि जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो हमारी मंजिल सनातन मोक्ष है, क्योंकि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है कि हम दोबारा इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म ना लें। अंतिम सीढ़ी है, जब हम यहाँ से फिसल जाते हैं तो 84 लाख सीढ़ियाँ हमें दोबारा चढ़नी पड़ती हैं, और 84 लाख ही नरक हैं। जब पुराण पढ़ें तो 84 लाख ही नरक हैं। तो भगवान ने इस पुराण के माध्यम से, इस प्रेत कल्प के माध्यम से इस जीव को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस जीव की सहायता की है कि किस प्रकार तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता उसी समय पंडित जी से पूछना शुरू कर देते हैं कि कौन सी लाइन में जाएगा, क्या बनेगा, पिता के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, क्या करेगा, कैसा इसका व्यवहार होगा। उसकी मंजिल तय करना शुरू कर देते हैं कि उसे डॉक्टर बनाना है। वकील का बेटा कहता है मैंने वकील बनाना है, पुलिस वाला कहता है पुलिस में जाएगा, मिलिट्री वाला कहता है कि मिलिट्री में जाएगा। इस प्रकार हम सभी जो है अपनी अपनी राय तैयार कर देते हैं, और पंडित जी ने भी कुंडली देखी नहीं और ये कह दिया इस लाइन में जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि टेवे में, कुंडली में ग्रह देखने से जो बच्चा जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। कब पहुंचेगा? जब हम उसे संस्कार देंगे, जब हम उसकी मंजिल तक पहुंचाने तक उसकी मदद करेंगे। उसकी मदद कैसे करनी है ये पुराण बताता है। सबसे पहले बच्चे को पीटना चाहिए, मारना चाहिए, और उसके बाद उसको प्यार करना चाहिए, और प्यार के बाद उसको लोभ देना चाहिए। ये 3 काम, यदि इन तीनों कामों में से एक काम भी बीच में छोड़ दिया तो बच्चा बिगड़ जाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बच्चे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि हम बच्चे को प्यार ही देते रहे तो वह बिगड़ जाएगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि हम कहें कि उसे मारते रहो तो भी जो बच्चा है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो ढीठ बन जाएगा। और कई लोग तो बच्चे को ये कहते हैं कि तू इस बार इतने नंबर लाके दिखा दे, हम तुझको ये लेकर देंगे, वो लेकर देंगे। इससे भी जो बच्चे बिगड़ जाते हैं वो नकल मारते हैं, क्योंकि उनको माता पिता की तरफ से ये टारगेट दिया जाता है कि तू ऐसा काम कर दे, हम तेरे को ये लेके देंगे। तो वो बच्चा जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, अपनी मंजिल से भड़क जाता है और अपनी मांग जो है वह पूरी करवा लेता है। तो 3 कार्य जो भगवान कहते हैं कि पूरा करता है वो जीव अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो भगवान ने कहा इस पुराण के माध्यम से इस जीव को भगवान तक पहुंचाने के लिए 3 कार्य बराबर दिए। कैसे? इस पुराण के जो पहले 5 जो अध्याय हैं उसमें उसको खूब पीटा है। जैसे हम बच्चे को पहले बताया पीटना चाहिए, फिर प्यार करना चाहिए, फिर लोभ देना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में भी भगवान ने यही सब कुछ किया है। तो उन्होंने जो पहले 5 अध्याय हैं उनमें नरकों का वर्णन किया है। जब हम इसमें वर्णनों को सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, इतने भयानक वर्णन किए हैं। इसमें बताया है कि किस प्रकार वह जीव को पीटते हैं, कैसे नरकों में ले जाकर इनको पीटते हैं। पहले 5 अध्यायों में भगवान ने इसकी व्याख्या की है। उसके दूसरे अध्याय में बैतरणी नदी की व्याख्या की है। जब यमलोक को जीव जाता है तो रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है। तो बैतरणी नदी खून से भरी पड़ी है, हड्डियों के ढेर लगे पड़े हैं, वहां पर कीचड़ है, दुर्गंध है, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो उसमें पड़े हुए हैं। जो जीव उस बैतरणी नदी में पड़ता है तो उसे नोच नोच कर खाते हैं। तो ध्यान दें कि जब भी हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो सबसे पहले हम बैतरणी नदी में ही पड़ते हैं। अब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अगर किसी को कहा जाए
कि मरने के बाद बैतरणी नदी में जाना पड़ता है, तो लोग कहते हैं कि ये पंडितों ने अपनी तरफ से ढोंग बनाया हुआ है। लेकिन हम सब एक बैतरणी नदी को देखते हैं जिसमें से होके हम सभी को ही आना पड़ता है, उसका विचार करना पड़ता है। तो इस पुराण में भी ये लिखा है कि मनुष्य शरीर तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य शरीर बैतरणी नदी में ना पड़े। तो इस शरीर में आकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमें उस बैतरणी नदी में ना गिर पड़े। कौन सी है बैतरणी नदी जिसके बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है? वो तो नरक में बताई गई है, उसको किसी ने देखा नहीं है। लेकिन माता का गर्भ तो सभी जानते हैं कि माता के गर्भ में हम 9 महीने तक रहते हैं, माता के गर्भ में पड़े रहते हैं। वहां पर कीचड़ भी है, हड्डियां भी है और तरह तरह के जीव जो दुर्गंध है। जब भी माता कोई तीखी चीज खा लेती है तो भी दर्द होता है। 9 महीने हम बैतरणी नदी में, इस पुराण में भगवान ने बताया है कि जो जीव बैतरणी नदी में होता है, जो यमदूत जो हैं उसके मुख में कांटा चुभाकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ हम 9 महीने गर्भ रूपी बैतरणी नदी में पड़े रहते हैं। मनुष्य शरीर में आकर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम उस गर्भ रूपी बैतरणी नदी में ना आए, हमारा जन्म ना हो। इस पुराण में पहले अध्यायों में भगवान ने नरकों के दुखों को दिखाते हुए आगे में अध्याय जो हैं उनमें प्यार किया है। किस प्रकार प्यार किया है? भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो जीव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उस जीव को मनचाहा फल प्राप्त होता है। सबसे पहला कर्म क्या है हमारा? कहीं मंदिर में जाके माथा टेकना या किसी की सेवा करना या किसी को कोई पैसा दान कर देना, ये हमारा कर्म नहीं है। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला कर्म है, हमारे माता पिता की ही सेवा करना। अगर हमारे माता पिता दुखी हैं तो लाखों तीर्थ कर लो, उसका कोई फल नहीं है। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहली जो हमारी देवता है वो माता ही है, जिसकी वजह से हम इस संसार में आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बैतरणी नदी से बाहर निकलने के बाद अपने जो कल्याण का मार्ग ढूंढने में सहायता मिलती है। तो दूसरे देवता जो हैं वो हमारे पिता हैं, जो हमें बुरे अच्छे के बारे में बताते हैं। अगर हम गलत रास्ते की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं तो प्यार से या मार से वो हमें समझाते हैं और सही रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। पिता को दूसरा स्थान दिया। तीसरा आचार्य गुरु जो है हमें विद्या देते हैं, जो हमें परमार्थ की ओर ले जाते हैं। उनकी सेवा का तीसरे स्थान पर है। माता पिता की सेवा करते हुए भगवान कहते हैं कि जो जीव अपने जीवन का निर्वाह करता है वह मन चाहा फल प्राप्त करता है। 5 अध्यायों में प्यार किया, अब बाकी की जो 5 अध्याय जो हैं उनमें लोभ दिया। क्या लोभ दिया भगवान ने? कि हे जीव, तू अपने माता पिता की सेवा करता हुआ उनके परलोक सिधारने पर जब वह अपना शरीर छोड़ जाएं तो उनको जो अंतिम संस्कार जो है, जिसे हम दाह संस्कार भी कहते हैं, उसे विधि पूर्वक करना। और उसके करने से तेरे माता पिता तो स्वर्ग जाएंगे ही, तेरे को भी स्वर्ग प्राप्त होगा। ये लोभ दे दिया कि संसार में जब भी तू शरीर छोड़कर जाएगा तेरे को भी स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। ये लोभ दिया आगे के 5 अध्यायों में। और माता पिता के मृत्यु के उपरांत कितने भी हमारे संस्कार, कितनी भी हमारी विधि है, उन सब को किया जाए। और याद रखें कि जो हमारा धर्म है, जिस धर्म का हम निर्वाह करते हैं, उसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। जीव इस मनुष्य शरीर में आता है तो उसे इंसान बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। 16 संस्कारों में जो 15 संस्कार जो हैं वो माता पिता ही अपने बच्चों के लिए करते हैं, जिसमें कोई यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, कर्णभेद संस्कार हो गया, और जो लास्ट संस्कार है जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं वो शादी है।
जिसको माता पिता अपने बच्चों की करवाते हैं। तो शादी तक माता पिता संस्कार करते हैं, जिसको 15 संस्कार कहा गया है। अपनी औलाद के लिए करते हैं कि 16वां संस्कार जो है वो पुत्र द्वारा अपने माता पिता के लिए संपन्न किया जाता है। 15 संस्कार माता पिता करते हैं, 16वां संस्कार जो है वो पुत्र करता है, कि जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार, अपना दाह संस्कार भी कहते हैं। जो मृत्यु के पश्चात होता है वो पुत्र अपने माता पिता के लिए करता है, कि जब तक हमने 15 संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए, वो जो 16वां संस्कार है वो सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए आज बड़े बड़े शहरों की तो क्या बात है, अपने शहर में भी ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमने पंडित जी अंत्येष्टि नहीं करनी है, आप अपना खर्चा बोलो और इसको काम को यहीं पे ख़त्म कर दो। तो संस्कार जो हमने 15 संस्कार जो अपने बच्चे को विधि पूर्वक नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास आजकल के युग में कामकाज की ऐसी दौड़ धूप लगी हुई है कि हम अपने बच्चों को अपने शास्त्र के बारे में कुछ बताते ही नहीं हैं। कहीं कथा चल रही होती है तो बच्चे भी अंदर मोबाइल लेके लगे रहते हैं, और माता पिता जो बुजुर्ग हैं वही बैठे रहते हैं। चौथे दिन ही सब कुछ कर लो और हम बेले हो जाएं, हमने अपने अपने काम पे जाना है। 15 संस्कार ही हम विधि पूर्वक नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चों को भी कोई गलती नहीं है। हमने संस्कार नहीं दिए, माता पिता संस्कार दें तो बच्चे जो हैं वो अपने आप ही सही रास्ते पर चलेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, हे गरुड़, इस प्रकार जीव जो है अपनी मंजिल तक पहुंचता है। 15वें अध्याय में भगवान ने इस जीव को लोभ दिया कि किस प्रकार तू अच्छे कुल में जन्म लेकर अच्छे विचारों का अपने मन में लाने और अपनी कुंडली को जागृत करके किस प्रकार तू मोक्ष को प्राप्त कर सके। लोभ जो दिया, ऐसा नहीं, फिर भी माता पिता की सेवा की तब भी स्वर्ग ही मिलेगा। जैसा आपके माता पिता कहें उनकी आज्ञा का पालन करना और उनके जो दिखाए मार्ग हैं उसका अनुसरण करना, वो भी आपको स्वर्ग की ओर ही लेके जाएगा, और स्वर्ग की प्राप्ति करके पुनः इस मृत्यु लोक में आकर अच्छे कुल में जन्म लेगा और यहाँ पर सभी सुखों का भोग करेगा। जब गरुड़ जी ने ये सुना तो उन्होंने प्रश्न किया, हे भगवान, वो जीव किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होगा, उससे आवागमन का चक्कर किस प्रकार हुआ, मुझे ये बताएं। ये जो मंजिल है वह कब तक कहाँ कैसे पहुँचे, पुनः जो है स्वर्ग में चला गया, नरक में चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया, ये सब चक्कर से हम कैसे बाहर हो सकते हैं। वो दोबारा जो है माता के पेट में जो बैतरणी नदी है उसमें ना गिरे, उसका कोई उपाय बताइए। तो 16वां संस्कार है मृत्यु के उपरांत, और 16 ही पिंड दिए जाते हैं। 3 प्रकार की षोडशी है, इस माध्यम से कही है। पहले दिन जब हम दाह संस्कार जो करते हैं तो 5 पिंड दिए जाते हैं, एक मृत्यु के स्थान में, दूसरा द्वारक में, तीसरा अर्ध मार्ग में, चौथा चिता में, 5वां जो सबके हाथ में दिया जाता है, और छठा पिंड जो है जब हम अस्थि संचय करते हैं, और 10 दिन के 10 पिंड जो हैं वो मध्यम षोडशी कहलाती है। फिर उसके बाद उत्तम षोडशी आती है, उसमें भी 16 पिंड दिए जाते हैं। फिर 12 महीने के 12 एक वार्षिक पिंड, त्रिपार्षिक, जिसको हम बरीना भी कहते हैं, वे पिंड 48 पिंड विधि पूर्वक जो भगवान कहते हैं जो करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, सब सुख भोग कर फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आता, फिर आता है जहाँ अच्छे कुल में जन्म लेता है। जब इतना सुना तो गरुड़ जी ने भगवान जी से पूछा कि हे भगवान, मुझे सनातन मोक्ष के बारे में बताएं, जिसके लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं कि किस प्रकार सनातन मोक्ष प्राप्त हो सके। तो भगवान कहते हैं कि 16वें अध्याय में 16वां संस्कार आदि अंत परे से परे भगवान शिव हैं, उनका अंश मात्र ये जीव है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ना ही जलती है, वह अमर है। तो जलने वाला ये शरीर है, जब तक हम ये आत्मा हमारे अंदर है तब तक ही हमारा एक दूसरे के साथ जो है संबंध है। आत्मा निकल गई तो सभी कहते हैं महाराज इसको जल्दी ले चलो, कोई नहीं रखता,
कुछ क्षण पास में बैठते हैं। आजकल तो ये भी रिवाज खत्म हो गया, अगले कहते हैं फोन पे पूछते हैं, हाँ जी कितने बजे लेके जाना है, हमें समय बता दीजिए, हम शमशान घाट में पहुंच जाएंगे, घर में आ जाएंगे। कैसे हुआ कैसे ये नहीं पूछते हैं, कब लेकर जाना है, इसको जल्दी ही ले चलो। इतना ही हमारा स्नेह है एक दूसरे के साथ। आप कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बंधु है, पुत्र है, पुत्री है, लेकिन हमारा जो संबंध है बस इतना की है एक दूसरे के साथ। जैसे ही शरीर में से आत्मा निकली नहीं तो हमारा स्नेह खत्म हो गया। तो बड़े से बड़ा पुत्र पुत्री भी डरते हैं कि हमें कुछ ना हो जाए, हमें कोई भूत ना चिमट जाए। तो इतना हमारे अंदर डर है एक जीव के प्रति। जब तक ये जीव एक दूसरे से बोलता है तब तक ही प्रेम है, और जब शरीर में से प्राण निकल गए तो कोई किसी का नहीं। भगवान कहते हैं कि आदि अंत परे से परे भगवान शिव हैं। भगवान शिव का अंश मात्र ये जीव है, और अपने कर्मों के अनुसार इसे उपाधियां भी मिली हुई हैं। जैसे अग्नि जल रही है और अग्नि की एक चिंगारी उठाई और अलग कर दी, और उस अग्नि को जिसकी चिंगारी अलग की है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अंगार कहता है, कोई कोयला कहता है, कोई राख कहता है, कई नाम दे दिए। इसी प्रकार ये जीव को अपने कर्मों के अनुसार नाम मिले हैं। किसी को सूद साहब कहा जाता है, किसी को शर्मा जी, किसी को ठाकुर जी। जैसे हमने कर्म किए हैं उस प्रकार से हमें नाम मिले हुए हैं। तो हम सब जो हैं वो भगवान के अंश ही हैं, भगवान से निकले हुए हैं। चिंगारी, कोयला, राख, इस प्रकार हमें नाम मिल गए। तो हमारा कर्म क्या है? इस प्रकार इस जीव को अपने कर्म के अनुसार नाम मिले हुए हैं। 84 लाख जैसे जैसे इनके काम किए हैं उसी उसी योनि में जाना पड़ता है। हम इस पुराण को पढ़ते हैं, सुनते हैं। कोई भी पुराण ले लो, किसी भी ग्रंथ की कोई भी वाणी ले लो, सत्संग ले लो, भजन ले लो, हम जहाँ पर सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं। और यदि हम उसका चिंतन करके उनको मनन करें तो हम अपने सही रास्ते पर जा सकते हैं। लेकिन हम इस पुराण के माध्यम से भगवान ने 6वें अध्याय में इस जीव को कहा है कि उसे कहाँ कहाँ जो वैराग्य होता है, कहाँ कहाँ पे सोचता है कि भगवान हैं और मेरी रक्षा करेंगे। पूरा जीवन वो इस बारे में नहीं सोचता है, लेकिन इन 4 जगहों पे जाकर उसको भगवान की याद आती है। जब वह माता के गर्भ में होता है तो 7वें महीने में उसे वैराग होता है। वह देखता है कि ये दुनिया बड़ी मोहने वाली है और दुख रूप है, इसमें फंसकर जो मैं आवागमन के चक्कर में फंस जाऊंगा। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नारायण, मुझे एक बार मुझे बाहर निकाल दो। पर बाहर आते ही माया जो है उसको मोह लेती है, क्योंकि सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरा भतीजा है। कोई कुछ बताता है तो सभी जो उसको है संसार में जो उनके नाम हैं उस नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दूसरा वैराग्य कहाँ पे होता है? जब कोई हमें बीमारी लग जाती है, हॉस्पिटल में होते हैं, वहां पर भी भगवान से हम कुछ नहीं है इस दुनिया में, इतना पैसा कमाया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भगवान एक बार मुझे बचा लो, मैं निरोग हो गया, दोबारा मैं ऐसे करूंगा। बस वहां पे जो वैराग्य है, जैसे ही ठीक हुआ नहीं वो वैराग्य भी चला गया। ठीक होते ही मेरा तो ये काम पेंडिंग पड़ा है, वो काम रह गया, ये रह गया, बस इन चक्रों में फंस जाता है। फिर कहीं सत्संग हो रहा हो, वहां पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, तब भी वैराग्य आता है कि बहुत अच्छी कथा चल रही है, जो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसे ही हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन कथा खत्म हुई नहीं तो सब खत्म। अगले कहते हैं हमने अपने कामों के लिए जाना है, तो फिर हमें जो आगे कहाँ कहाँ वैराग्य होता है, तो भगवान कहते हैं कि किसी की अर्थी के साथ शमशान घाट में जाएं, फिर वहां पर जाकर भी एक दूसरे से बात करते हैं कि असली घर आ गया, यहीं पर आना है हमारा सबने, हमारी बारी भी आएगी, कौन है जो यहाँ नहीं आएगा। इसलिए सभी एक दूसरे से ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं कि यही असली घर है। वहां पे भी वैराग्य आता है, उसको ज्ञान तो है कि ये असली घर है, लेकिन जैसे ही चिता को अग्नि दी नहीं तो सभी अपना भागना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। वहां पे भी वैराग्य जो है वो भगवान कहते हैं छूट जाता है। अगर ये वैराग्य स्थिर हो जाए
तो कौन मनुष्य है जो सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वैराग्य जो है वहां से निकलते ही वैराग्य चला जाता है, मन में माया मोह लेती है। जो जीव भगवान का एक अंश है, मोक्ष क्या है जिसके चक्कर में हम सब पड़े हुए हैं कि जो चिंगारी अग्नि से बाहर उठाकर रखी थी वो दोबारा ही अग्नि में मिलानी है। अगर उसको अग्नि में नहीं मिलाएंगे तो वो राख बन जाएगी। किस प्रकार रखनी है ये विचार करने की बात है। ये जीव भगवान का जो अंश है उसे भगवत में ही मिलना है, यही सनातन मोक्ष है। जब तक ये भगवान में लिप्त नहीं होगा तब तक ये आवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, अच्युत नारायण नारायण नारायण, दामोदर नारायण नारायण नारायण, नरोत्तम नारायण नारायण नारायण, नरोत्तम नारायण नारायण नारायण, गुरवे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नभ में नारायण नारायण नारायण, थल में नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, परिवार वालों की ओर से प्रार्थना है कि बड़े दुख का समय है जिस समय आप सब जो हैं उनके परिवार के साथ सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का उनके परिवार वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का प्रसाद तैयार है, जिन्होंने खा लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं खाया वे प्रसाद खा कर जाएं। अब जो है पगड़ी की रस्म जो है वो पूरी की जाएगी। उससे पहले हमारे जो सू साहब जी हैं वो कुछ अपने विचार साझे करेंगे। श्री ओम प्रकाश जी सूद जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति और बहुत प्रतिभाशाली
और बहुत ही ख़ास व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके काफ़ी कुछ कहा जा सका, पंडित जी ने भी कहा उनके बारे में। उनके बारे में अगर मैं कुछ भी उनके अच्छे जो विचार थे और जिस तरीके से वो सूझबूझ थे, अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद शब्द कम हो जाएंगे। और इतना कहते हुए कि जो कुछ वो जाने लगे भी कर गए, उसका कोई मोल नहीं है। अपनी देह को वो दान कर गए और उन्होंने इस चीज़ को पक्का किया कि मेरे जाने के बाद, और बाकायदा वो लिख के उसको सारे फॉर्म में देके गए हैं और उसी मुताबिक उनकी इच्छा के मुताबिक देह दान उनकी जो है कल की गई। और मैं अब कुछ शोक प्रस्ताव आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। इसके बाद मैं रोटरी आई डोनेशन क्लब की तरफ से प्रोफेसर DK शर्मा जी को आमंत्रित करूँगा कि वो देह दान के बारे में कुछ बताएं और जो श्री ओम प्रकाश सूद जी ने अपनी देह को दान किया है वो उसके बारे में कुछ अपने विचार रखेंगे कुछ समय के लिए। और जो शोक समाचार, जो शोक प्रस्ताव आए हैं वो हैं मंदिर श्री राधे श्याम जी प्रबंधक कमेटी स्वामी मोहनानंद जी आश्रम सुखियाबाद चौके पारो हुशियारपुर से आया है। और ये रोटरी क्लब आई डोनेशन की तरफ से JV बहल जी ने ये भेजा है, जो कि खुद भी यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका जो शोक प्रस्ताव है वो ये है रोटरी आई बैंक एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड हुशियारपुर की तरफ से। और हमारे सूद सभा रजिस्टर्ड हुशियारपुर की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। तो आप सबके आशीर्वाद से मैं कार्यक्रम ऐसे प्रधान देख रहा हूँ सूद सभा का। मैं सिर्फ इतने सूद सभा की तरफ से कहूँगा कि हमारे सूद सभा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए श्री ओम प्रकाश जी सूद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके आशीर्वाद से हमारी सूद सभा चलती रही। हमारे बीच में श्री तीक्ष्ण जी भी बैठे हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और कल भी तीक्ष्ण जी ने आके खुद अपने हाथों से जब वो देह दान किया गया तो इन्होंने सब कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और हमारे सूद सभा के वो पैटर्न थे, बहुत ही माननीय पैटर्न थे। तो सूद सभा परिवार के साथ इस चीज़ में बारे में अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। तो शोक प्रस्ताव सूद सभा ने भी भेजा है। तो मैं अब श्री DK शर्मा जी रोटरी क्लब डोनेशन रोटरी डोनेशन आई डोनेशन की तरफ से जो सोसाइटी है वो आए हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि इस चीज़ के बारे में आपको कुछ बताएं। भाई और बहनों, आज हम उस महान आत्मा को अंतिम विदा करने के लिए यहाँ आए हैं जिसने हम सबको एक नया रास्ता दिखाया और बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। वो थे ओम प्रकाश सूद जी, जिन्होंने जो अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जीते रहे। उनके सामने एक ही उद्देश्य था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। भाई और बहनों, ये शरीर जो हमें मिला है, किसी और जीव और प्राणी को ऐसा शरीर नहीं मिला जो मानव शरीर हमें मिला है। और इसमें परमात्मा ने हमें 2 आंखें दी हैं देखने के लिए। मैं रोटरी आई बैंक की तरफ से, यहाँ पर प्रधान जी भी बैठे हैं और चेयरमैन साहब JB बहल जी भी बैठे हैं, हम उन लोगों को आंखें लगाते हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते, जिन्हें पता नहीं दुनिया में संसार का रंग कैसा है, मेरे बेटे का चेहरा कैसा है, ये संसार कैसा है, फूलों का रंग कैसा है, वो देख नहीं सकते। हम उन लोगों को आंखें लगाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो हमें अपनी आंखें दान कर जाता है। वो हम 2 आंखें निकाल कर 2 लोगों को लगा देते हैं
और वो इस संसार को देख सकते हैं। एक भिखारन को आंख लगाई थी, जब उससे पूछा तुम किसे देखना चाहती हो, तो उसने कहा मैं सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, मैंने अपनी माँ को भी देखा। आज तक 4000 लोगों को हम आंखें लगा चुके हैं, और वो 4000 लोग आज इस संसार को देख रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम भी ये संसार देख सकेंगे, फूलों का रंग देख सकेंगे, जीने का ढंग देख सकेंगे, सागर की उमंग देख सकेंगे। आज वो लोग 4000 जो लोग हैं वो अपनी हमने उन्हें आंखें लगाई हैं। हर रोज़ हमारे दफ्तर में जो वैष्णो धाम में है लोग आते हैं, अपना फार्म भर जाते हैं। और इससे भी बड़ा दान जो है वो है काया दान, शरीर दान, जो श्री ओम प्रकाश सूद जी ने मरने के बाद दिया है। ये शरीर जो है बहुत बड़ा कारखाना, इसमें बहुत कुछ है, इसका एक एक अंग बड़ा कीमती है। ये शरीर हमने मेडिकल कॉलेज में भेजा है जहाँ बच्चे डॉक्टरी की शिक्षा ले रहे हैं। वहाँ पर वो शरीर को देखकर वो सीखते हैं कि किसका उपचार कैसे करना है, किसका इलाज कैसे करना है। वो शरीर के द्वारा ही देखते हैं। शरीर देने वाला मरता नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि वो अपना शरीर दे गया है और हजारों लोगों को वो जिंदा कर गया है। हजारों लोग जब उस शरीर से सीखेंगे कि ये कौन सी नस है, ये कौन सी अस्थि है, ये कौन सा ग्रंथि है जो जा रही है इसके बीच में, हमें इसका इलाज कैसे करना है, वो वहाँ से सीखते हैं। तो काया दान देने वाला, शरीर दान देने वाला तो हमेशा जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। वो तो अपनी संजीवनी दे गया हजारों लोगों को, हजारों लोगों को वो जिंदा कर गया है। ये काया दान जो है ये नई धारणा नहीं है, इट इज़ नॉट ए न्यू कंसेप्ट। ये हमारे ग्रंथों में है, हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। राजा ऋषि दधीची जी, देवताओं ने कहा अपना शरीर दे दो हमें, हमने युद्ध लड़ना है और वो आपके शरीर की हड्डियों से ही हमारे हथियार बनेंगे, शस्त्र बनेंगे। तो राजा दधीची ने अपना शरीर दे दिया और वो उनके काम आया और उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। राजा शिवी को बाज ने कहा मुझे अपना शरीर दे दो तभी मेरी भूख मिटेगी, और राजा शिवी ने अपना शरीर दे दिया बाज को उसकी भूख हटाने के लिए। तो मेरे यहाँ पर बैठे हुए भाई बहनों, शरीर दान जो है ये महादान है। आप 1000 तीर्थ कर लें, उसका फल जितना आपको लगना है वो शरीर दान करने से या आंखें दान करने से उसका फल आपको मिलता है। और आप मरते नहीं हैं, आप शरीर दान करके वो पड़ा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। हजारों बच्चों को रास्ता दिया आपने, हजारों बच्चों को मंजिल दिया आपने कि आपने किस प्रकार से यहाँ करना है। तो सूद साहब तो पहले ही दूसरों के लिए जी रहे थे, अपने लिए तो जी नहीं रहे थे, और दूसरों के लिए मसीहा थे। वो गरीब गुरबों की, मजलूमों की वो सहायता करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो तो अपना शरीर देकर अपने आप को जिंदा कर गए, अमर कर गए अपने आप को, और दूसरों के लिए एक रास्ता खोल कर चले गए कि भाई मरने के बाद भी तुम लोगों की सेवा, जिंदा तो सेवा करते हैं आप लोग, मरने के बाद भी आप अपने लोगों की सेवा करेंगे, उनके बाद भी आप सेवा करेंगे। तो ऐसी महान आत्मा को हमारे शत शत प्रणाम है, हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और हम उस परम पिता परमात्मा से, हमारे रोटरी आई बैंक के, मैंने पहले कहा प्रधान जी, अभी चेयरमैन साहब गए हैं, ये प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से कि हे परमात्मा उनको अपनी शरण में रखना, उनको अपने पास रखना, और जो परिवार है उनको सांत्वना देना ताकि वो इस बड़े आघात को सहन कर सके। अंत में मैं ये कहूँगा, जिस दिल में दया का भाव नहीं फिर वह कोई इंसान नहीं। जिस दिल में दया का भाव नहीं फिर वह कोई इंसान नहीं। जो पत्थर काम ना आ सके वो पत्थर है, भगवान नहीं। जिसने माँ के आंसू नहीं पहुँचे वह अच्छी कोई संतान नहीं। लख दान करो सब अच्छे हैं, पर शरीर दान से बड़ा कोई दान नहीं, शरीर दान से बड़ा कोई दान नहीं। बहुत बहुत अरुण जैन जी से मेरी बेनती है कि वो भी हमारे सदस्य हैं, वो कृपया करके यहाँ आ जाए।
प्रार्थना सभा कह लो, प्रेरणा सभा कह लो, उपस्थित हुए सारे ही बहुत सत्कारयोग भराओ भैनों। वैसे तो बहुत गमगीन माहौल है, कोई भी अपना प्यारा छड्ड के जाता तो दुख होंदा, उसकी कमी भी महसूस होती है। पर जिंदगी वांग मौत भी अटल सच्चाई है, बचिया नहीं जा सकता। हानि लाभ जीवन मरण जश अपजश, 6 चीज़ां परमात्मा ने अपने को रखियां, अपना बस नहीं चलना। पर श्री ओम प्रकाश जी एक बहुत वधिया इंसान सन, बहुत मिठा बोलने वाले, धार्मिक कामों च हमेशा अगे रहने वाले, और समाज सेवा चाहे वह रोटरी के राही हो, चाहे व्यापार मंडल के राही हो, चाहे सूद सभा के राही हो, हर फील्ड च अगे होके लोगों के अपनी जिंदगी दे विच उन्होंने तन मन धन अपना लगाया। और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी आत्मा किस तरह की है, वो कर्मां तो ही पता लगता है। उन्होंने बारे में सोच रहा सी तो मैनू भगत कबीर के 2 दोहे वो ध्यान चाहते हैं। एक जड़ा बिल्कुल उन्होंने टुकदा, और एक दोहा जी की एक्सैप्शन से, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण पावानंद। ये सोच आम इंसान की नहीं होंगी, ये भगतां संतां की सोच होंगी है, जिहड़ा एक्सैप्ट करता मौत में। और जिहड़ा एक्सैप्ट करता, प्रोफैसर DK शर्मा जी बड़ा देहदान बारे ज्ञान दे के गए, सानू दस के गए हैं। एक्सैप्ट करना वही एडा वड्डा दान कर सकता, वरना असी अपनी मिट्टी नाल चिमड़े रहे, जिंदगी भर मिट्टी के नाल चिमड़ते हैं, और बाद भी देह छड्डनी बड़ी मुश्किल होती। सो उन्होंने देह दान भी की, और इस गल नूं अश्योर भी किया कि मेरा जो इच्छा मेरी है, जो मेरी सोच है, वो उत्ते पहरा दिता जाए। सो ऐसी वो महान शख्सियत सी साडे बाबा ओम प्रकाश जी। और दूसरा, क्योंकि संतां दी बाणी, संतां दे वचन तो शाश्वत होंदे, गलत नहीं होंदे, और सारी दुनिया वास्ते होंदे। भगत कबीर जी कहते हैं, नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। ये सब ना लिया, आदमी मरदा वह कुछ भी काम नहीं आता, ना चमड़ी, ना हड्डियां, ना ऋषि ऋषि वास्ते गल की उन्होंने प्रोफेसर साहब ने। सो क्यों याद रखते हैं कि उन्होंने वो इस दोहे की एक्सैप्शन से, और इसी तरह बाबा ओम प्रकाश जी भगत कबीर के इस दोहे की एक्सैप्शन अपने आप में साबित करते हैं। और कल्ले बरादरी वास्ते नहीं, पूरे समाज वास्ते, पूरे हुशियारपुर वास्ते नहीं, पूरे जगत वास्ते उन्होंने उदाहरण पेश की कि जब मैं देहदान की तो देहदान एश्योर भी हो गए, और धन उन्होंने परिवार जिन्होंने ऐसा पुरखा मिले, ऐसा उन्होंने गार्डियन मिले, बाप मिले। सो सारे अगे नमन, ऐसिया आत्मावां बार बार जन्म लैन और समाज सेवा का काम करन। यही प्रार्थना सानू सबनूं करनी पैगी। जय श्री राम। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀय ਬਾਊ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਮਿਲੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਆਪਸੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ,
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ हैं। यही साड़ी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। जय ओम शांति शांति शांति। परिवार की तरफ से आप सबका सहानुभूति प्रकट करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।